حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی تیاری، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے سر جوڑ دیے۔ احسن اقبال کی زیر صدارت اجلاس، اپوزیشن کے میثاق پاکستان معاہدے کی تیاری کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دیے جانے کا امکان، مرکزی عہدیداروں کا چناؤ بھی کیا جائے گا۔ کوئٹہ جلسے کی تبدیل شدہ تاریخ پر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں پہلا اختلاف، پی ڈی ایم کے تنظیمی ڈھانچے پر بھی تحفظات کا اظہار۔ 18 اکتوبر کو یوم کارساز مناتے ہیں، کراچی جلسے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، پیپلز پارٹی ڈٹ گئی۔ اگر آئین کی بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی۔ اگر الیکشن میں دھاندلی کے خلاف بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی۔ اگر مہنگائی کے خلاف بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی۔ اگر اس کرپٹ حکومت کو گھر بھیجنے کی بات ہے، ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی۔ اگر ملک میں بے روزگاری کی بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز بغاوت ہوگی۔ آئین کی بات کرنا بغاوت ہے تو ہر روز بغاوت ہوگی۔ عام شہری کا سہارا نہ لیں، کھل کر سامنے آئیں، ہمت ہے تو مقدمے میں نامزد تمام لوگوں کو گرفتار کریں۔ 4 دن سے وفاقی وزراء ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں، اپوزیشن کو غداری کا سرٹیفکیٹ دینے سے نالائکی نہیں چھپ سکتی، شاہد خاکہ احسن اقبال کی میڈیا ٹاک۔ میاں نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی 3 انڈینز ملے تھے لندن میں میاں نواز شریف سے۔ میاں نواز شریف کو 3 انڈینز کی ضرورت نہیں ہے، میاں نواز شریف کے ساتھ 22 کروڑ پاکستانی ہیں، جس کے ساتھ 22 کروڑ پاکستانی ہوں گے وہ 3 انڈینز کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ یا تو یہاں کچھ دال نہ پکڑی ہو تو پھر آپ جا کے اللہ نہ کرے کوئی انڈین سے سپورٹ مانگیں گے۔ ہمیں کوئی سپورٹ نہیں چاہیے، ہمیں پاکستان کی عوام پر بھروسہ ہے۔ نہ بتایا جائے کہ میاں نواز شریف کس سے ملے تھے، یہ بالکل جھوٹ ہے اور اس قسم کی سیاست کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ نواز شریف کسی بھارتی سے نہیں ملے، الزامات جھوٹ کا پلندہ، لیگی قائد کو 22 کروڑ پاکستانیوں کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت نہیں، حکومتی افراد سیاست چھوڑ کر ذاتیات پر اتر آئے، محمد زبیر کی گفتگو، سابق گورنر سندھ نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان مقرر۔ کمر میں تکلیف ہے، زمین پر کھانا دیتے ہیں، شہباز شریف کی دوران تحویل غیر انسانی سلوک کی شکایت، اگر جان گئی تو مقدمہ عمران خان اور شہزاد اکبر کے خلاف درج ہوگا، نیب نیازی گٹھ جوڑ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا، لیگی صدر کی گفتگو۔ نواز شریف کی تقاریر پر پابندی کے خلاف درخواست خارج، اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔ سابق وزیر اعظم کی تقاریر پر پابندی کے لیے عدالت مداخلت نہیں کر سکتی، مقدمہ عوامی اہمیت کا نہیں، چیف جسٹس اطہر من اللہ نے محفوظ فیصلہ سنا۔ نواز شریف، مریم، شاہد خاقان، ایاز صادق سمیت دیگر لیگی رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج، لاہور کے شاہدرہ تھانے میں FIR کاٹی گئی، تقاریر اشتعال انگیز، سابق وزیر اعظم بھارتی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، درخواست گزار۔ عمران خان جس کا نام ہے وہ اسمبلی توڑ دے گا، ان کو کسی قیمت پر نہیں دے گا۔ کیا نواز شریف صاحب آپ آصف زرداری کے خلاف میمو گیٹ میں کوٹ پہن کر وکیل بن کر آپ نے پٹیشن دائر نہیں کی؟ جو ملاقات آپ نے کھٹمنڈو میں نریندر مودی سے کی، کیا اس کا حال احوال فارن آفس کو بتایا؟ نواز شریف سن لیں، پاکستان کے ادارے عظیم ہیں، پوری قوم کو پاک فوج پر فخر ہے، عمران خان اسمبلی توڑ دے گا، کسی کو NRO نہیں دے گا۔ نواز شریف بتائیں کہ حسین حقانی کے خلاف کالا کوٹ پہن کر کون عدالت گیا تھا؟ کیا آپ نے کھٹمنڈو میں مودی سے ملاقات کا کسی پاکستانی ادارے کو بتایا؟ مریم نواز نے ٹویٹر اکاؤنٹ 1 سال تک کیوں بند رکھا؟ شیخ رشید کے مزید سوالات۔ انتظار کر رہا ہوں شہباز گیل، ابھی تک تم نے مناظرے کا چیلنج ایکسیپٹ نہیں کیا۔ میں تیار بیٹھا ہوں، یہ جو بھارتی ایجنٹ کے تم نے نعرے لگائے ہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا، تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے، اور اگر ثبوت نہ دیے
तुम्हारे घर का घेराव करेंगे। हमने वर्कर्स को अभी बड़ा रोक के रखा है। अगर साबित ना कर सके तुम पूरी कौम के सामने माफी मांगोगे। शहबाज गिल को मुनाजरे का चैलेंज, मुआवने खुसूसी को भारतीय एजेंट का इल्जाम साबित करना होगा। माफी ना मांगी तो इनके घर का घेराव करेंगे। अताब तारड़ की धमकी। अभी तहरीक का बासाब्ता आगाज नहीं हुआ, इनकी चीखें निकल गईं। उस्मा बुखार। मरियम औरंगजेब साहिबा या मरियम सफदर से मुनाजरे के लिए तैयार हूं। जिनके बड़े ब्रीफ केस में पैसे बांटते रहे उनके साथ क्या मुनाजरा हो सकता है। करप्शन के पैसे से परवरिश बुरी होती है। शहबाज गिल का ट्वीट। नवाज शरीफ मरियम नवाज के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त। चौधरी शुगर मिल्स रेफरेंस की तैयारी मुकम्मल। भारी सरमायाकारी के लिए गैर मुल्कियों का नाम इस्तेमाल करने का इल्जाम। 50 से ज्यादा गवाहान भी शामिल किए जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। ऑपोजिशन लीडर और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश। नुसरत शहबाज, सलमान शहबाज और राबे इमरान के वारंट गिरफ्तारी के हवाले से रिपोर्ट जमा। समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने पुलिस को 10 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। फजलुर रहमान के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी का जायजा। अमीर मकाम और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ इंक्वायरी। बिलियन ट्री सुनामी करप्शन केस की तहकीकात पर भी बातचीत। ख्वाजा आसिफ का बयान ऑपोजिशन में दरारें डालने के मुतरादिफ। लीगी रहनुमा ने किसी के मां पर बयान दिया होगा। नवाज शरीफ के साथ ताल्लुकात अब ठीक हैं। ऑपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के केसेस बनते रहते हैं। आसिफ जरदार। पार्क लेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस। आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद। साबिक सदर का सेहत जुर्म से इनकार। पार्क लेन जिबनी रेफरेंस में 19 जबकि ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 15 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म लगाई गई। असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। कोरोना की सूरत हाल का जायजा। हिफाजती इकदामात पर अमल करके ही वबा की दूसरी लहर से बचा जा सकता है। वफाकी वजीर। बच्चों को महफूज रखने के लिए बेहतरीन इकदामात किए गए। SOPs पर अमल दरामद करने पर इजलास में तालीमी इदारों की तारीफ। शहर कायद में कोरोना की सूरत हाल फिर संगीन होने लगी। सितंबर में सबसे ज्यादा 60% केसेस कराची में रिपोर्ट। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर इंतजामिया एक्टिव। एहतियात ना बरतने पर मुकम्मल लॉकडाउन लगाने की बात। सी व्यू कराची पर कचरे का ढेर। वसीम अकरम को अहलिया के सामने शर्मिंदगी का सामना। वीडियो सामने आने के बाद इंतजामिया को शर्म आ गई। साहिल समंदर से सफाई का आगाज। सस्ते आटे की तलाश एक ख्वाब। लाहौर में आटा चक्की मालिकान की मनमानियां। कीमत में मजीद 2 रुपए इजाफा। आटे के नर्ख 76 से बढ़कर 78 रुपए किलो हो गए। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। आटे की कीमतों में रोज बरोज बढ़ते ही जा रहे रेट इनके। देखें अभी 50-60 रुपए था, अभी 80 रुपए तक चला गया आटे का। आटा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। गरीब बंदे हैं, आवाम क्या करें। मेरा ख्याल है लोग फाकों पर मजबूर हो जाएंगे। रोड्स पर लोग आ जाएंगे और मेरा ख्याल है हर दूसरा फर्द मुझे तो भिखारी बंदा नजर आएगा। पंजाब में आटे की कोई कमी नहीं। गंदम की बिला तातुल फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सिंध हुकूमत फ्लावर मिल्स को गंदम क्यों नहीं दे रही। पीपल्स पार्टी सरकार मनफी रवैया तर्क करके जिम्मेदारी अदा करे। फयाजुल हसन की फिक्र। महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। कोयटा में सब्जी की कीमतों में इजाफा।
टमाटर 150, मटर 240, लहसुन 300 और अदरक 600 रुपए फी किलो में फरोख्त। शहरियों के होश उड़ गए। हर चीज़ महंगी, टमाटर वो 150 रुपए किलो, भिंडी 200 रुपए किलो, और मटर तो हम लोग खा ही नहीं सकते गरीब बंदे। जब सब्जी महंगी होती है हम तो नहीं खाते। हाँ, हमने भूख से जिंदगी गुजारने को तैयार कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी की मुलाकात। सी पैक मंसूबों के हवाले से तबादला ख्याल। ज़राअत के फ़रोग़ के लिए अहम प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। आसिम सलीम बाजवा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं सैयद मलिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद। आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास पीपल्स पार्टी ने 18 अक्टूबर के जलसे पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि 18 अक्टूबर को सानह कारसाज की याद में यौम शोहदा मनाते हैं। स्टीयरिंग कमेटी ने पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर मुशावरत शुरू कर दी है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पहले जलसे को लेकर ही बार बार तारीखों में रद्द बदल हो रहा है। पहले 7 तारीख का कहा गया महमूद खान अचकज़ई और उनकी जमात की तरफ से, लेकिन उसके बाद इत्तफाक हुआ 11 तारीख पर। फिर उसके बाद एक मरतबा फिर तारीख को बदला गया और 18 अक्टूबर का ऐलान किया गया। लेकिन अब इस तीसरी तारीख पर भी इख्तिलाफ सामने आ रहा है और इस वक्त पीपल्स पार्टी को इस 18 अक्टूबर की तारीख पर तहफ्फुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि 18 अक्टूबर को सानह कारसाज की याद में यौम शोहदा मनाते हैं। इस सिलसिले में कराची में जलसा है, इस तारीख को तब्दील किया जाए। शाकिर सुलंगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। शाकिर, अब 4थी तारीख का ऐलान होगा और क्या यकीन है कि उस पर सबका इत्तेफाक भी होगा? जी देखें, ये तीसरी दफ़ा तारीख़ तब्दील करने की तजवीज़ सामने आई है। इससे पहले यही स्टीयरिंग कमेटी अनाउंस कर चुकी है कि 11 अक्टूबर को कोयटा में जलसा होगा, एहतजाजी तहरीक का पहला जलसा। लेकिन JUI की तरफ से मौलाना फजल रहमान ने तजवीज़ ये दी कि क्योंकि APC से पहले JUI ने जलसों का शेड्यूल अनाउंस कर दिया हुआ है मुख्तलिफ शहरों में, कराची, कोयटा और दीगर शहर हैं उसमें शामिल, तो JUI की तरफ से 18 अक्टूबर को जलसा किया जा रहा है कोयटा में। तो इस जलसे को PDM अपने प्लेटफार्म से करे और 11 का कैंसिल किया जाए, जिसके बाद गुज़श्ता रोज़ JUI और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि दोनों मुश्तरका तौर पर इस जलसे की मेज़बानी करेंगी और 11 की बजाय 18 को ये जलसा होगा। लेकिन 18 पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ात हुए हैं। पीपल्स पार्टी का एक जनवन एतराज़ ये है कि जो 18 अक्टूबर 2007 को हुआ था, तो 18 अक्टूबर को जिसमें 177 कारकुनान शहीद हो गए थे और 600 से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए थे। तो इस सानह की वजह से हम यौम शोहदा मनाते हैं, तो हम जलसा करेंगे कराची में, तो 18 को तब्दील किया जाए। तो इस पर मुशावरत की जा रही है। यूसुफ रज़ा गिलानी, शहरी रहमान और पीपल्स पार्टी के दीगर मेंबरान जो हैं इस इजलास में मौजूद हैं, जिन्होंने ये तजवीज़ दी है कि इजलास की तारीख तब्दील की जाए। 18 की बजाय 25 तारीख को तजवीज़ किया है पीपल्स पार्टी ने, लेकिन 25 पर अभी इत्तेफाक राय नहीं हुआ, इस पर मुशावरत जारी है। ठीक है। अच्छा शाकिर, साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि मीसाक़ पाकिस्तान के लिए भी आज मुशावरत हो रही है, उसका भी कोई हतमी तौर पर ऐलान हो जाएगा और साथ ही ओहदेदारों के बारे में भी मुशावरत चल रही थी। ये सारे मराहिल भी इख्तिलाफ से दो चार हैं या ये क्लियर हैं? जी देखें, इस पर कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया मीसाक़ के पाकिस्तान के मामले पर, क्योंकि वो कमेटी बननी है और तमाम जमातों के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, कानूनी माहिरीन, उनको शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान को जो सरबराही दी गई है, इसका बड़ा जो एजेंडा है ये भी है एक कि मौलाना फजल रहमान को जो सरबराही दी गई है परमानेंट होनी चाहिए या इसको रोटेशन पर रखा जाए। तो बहुत सारे मामला जो हैं अपोजिशन आज उस पर सर जोड़ कर बैठी है। आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.